اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ، ہم لوگ انواع التشبیہ پڑھ رہے تھے اور اس کی مشق کر رہے تھے، اور اس کے مشق میں سے کئی جملے ہو چکے ہیں اور کئی جملے باقی ہیں۔ جملہ نمبر 12 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ بات، اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا اور اس پر بات ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست، یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست، پرندے دل پرندوں کی طرح ہیں محبت میں جب پرندے مانوس ہو جائیں، یعنی دل یہ مانوس پرندوں کی طرح ہیں محبت میں۔ یہ تشبیہ کی کون سی قسم بنے گی؟ قسم جاننے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو بہت پہلے بتایا تھا کہ تشبیہ کے ارکان جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں، بغیر ارکان جانے ہوئے آپ تشبیہ کی قسموں کو نہیں چھانٹ سکتے ہیں، الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس میں۔ مشبہ ہے کہ نہیں، مشبہ بھی ہے کہ نہیں، ادات ہے کہ نہیں، اور وجہ شبہ ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں مشبہ ہے القلوب، اس کو تشبیہ کس چیز سے دی گئی ہے؟ طیر سے۔ مشبہ بھی اس کا مطلب ہے۔ ادات ہے کہ نہیں، یہاں ادات بھی ذکر ہے کاف۔ ادات میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کاف ہے، کانا ہے، مثل ہے، شبہ ہے، اشبہ ہے، حکا یحکی ہے، مشابہ ہونا۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ کاف ہے اس میں سے، ادات میں سے۔ دیکھتے ہیں وجہ شبہ ہے کہ نہیں، وجہ شبہ بھی ہے یہاں۔ اس کا مطلب یہاں تشبیہ کے چاروں ارکان موجود ہیں، لیکن نام چاروں کو دیکھ کر کے نہیں دیا جاتا ہے۔ نام جو دیا جاتا ہے وہ ادات اور وجہ شبہ کو دیکھ کر کے ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ادات کاف ہے۔ اب ادات ہے تو کون سا نام دیا جاتا ہے، اور نہیں ہے تو کون سا نام دیا جاتا ہے؟ اگر ادات ہے تو اس کو مرسل بولتے ہیں، اور ادات التشبیہ اگر نہیں ہوتا ہے جملے میں تو اسے مؤکد کہا جاتا ہے۔ تو مرسل ہے کہ مؤکد؟ کالطیر ہے تو اس کا مطلب مرسل ہے۔ اور وجہ شبہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ شبہ بھی اس میں ذکر ہے۔ تو وجہ شبہ کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا الگ الگ نام ہے۔ اگر وجہ شبہ جملے میں، تشبیہ کے جملے میں ذکر نہیں ہے تو اسے مجمل بولتے ہیں، مجمل۔ اور اگر ہے تو اسے مفصل بولتے ہیں، مفصل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں وجہ شبہ ہے، لہٰذا یہاں اس کو ہم مفصل بولیں گے، مجمل نہیں کہیں گے۔ تو ادھر مرسل ہو گیا ادات کے حساب سے، اور وجہ شبہ کے لحاظ سے یہاں مفصل ہے۔ لہٰذا اس تشبیہ کا جو ہم نام دیں گے وہ ہے مرسل مفصل۔ تشبیہ میں ہمیشہ ڈبل نام ہوتا ہے، جان لیجیے، کیونکہ ادات یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے وجہ شبہ یا تو ہے یا تو نہیں ہے، تو ہے یا نہیں اس لحاظ سے الگ نام بنے گا، ایک نام بنے گا۔ وجہ شبہ ہے یا نہیں ہے اس کے لحاظ سے ایک نام بنے گا، اور ادات ہے یا نہیں اس کے لحاظ سے ایک نام بنے گا۔ تو ڈبل نام ہمیشہ بنے گا اس کا۔ ہاں، بلیغ کو جو بلیغ کہہ دیا جاتا ہے وہاں پہ در حقیقت ڈبل نام ہوتا ہے،
लेकिन दोनों को समेट करके एक नाम कह दिया जाता है बलीग। तशबीह बलीग में भी डबल नाम है, मुअक्कद और मुजमल जो है उसको बलीग नाम दिया जाता है। मुअक्कद मुजमल अलग अलग नहीं कहते हैं, बलीग एक शार्ट नाम दे देते हैं बलीग। बलीग दर हकीकत मुअक्कद और मुजमल ही है, यानी उसमें ना अदात है और ना ही वजह शब है, लिहाजा उसको बलीग कहा जाता है। एक मिसाल और देखते हैं। मदह आराबी रजुलन फ़क़ाल, एक आराबी ने, एक देहाती ने एक आदमी की मदह की तो कहा, लहू हिज़्ज़तुन का हिज़्ज़ति सैफ़ इज़ा क़रिबा व जुरअतुन का जुरअतिल लैस इज़ा ग़दिबा। उसके लिए झूमना है जैसे तलवार का झूमना जब वो मस्त होता है। तलवार भी जब खून पी लेती है मैदान जंग में तो खूब झूमती है और झूम झूम के लोगों के गर्दनों तक पहुंचती है और झूम झूम के पीती है तलवार, और जितना ज़्यादा पीती है उतना झूमती है, और जितना ज़्यादा झूमती है उतना पीती है। हाँ, तो हर चीज़ की खुराक होती है ना, ऐसे तलवार की भी खुराक, तलवार की खुराक खून और गोश्त है। लहू हिज़्ज़तुन का हिज़्ज़ति सैफ़ इज़ा तरिबा, कहा उसके लिए हरकत है। हज़्ज़ माने हिलाना, हरकत करना, झिझोड़ना। उसके लिए हरकत है जैसे तलवार की हरकत हो जब वो मस्त हो जाता है। जब मस्त होता है तो तलवार किसी हरकत करता है वो। व जुरअतुन का जुरअतिल लैस इज़ा ग़दिबा, और जुरअत है शेर की जुरअत की तरह जब वो गज़बनाक हो जाता है, जब वो गुस्से में होता है तो उसकी जुरअत शेर की जुरअत की तरह हो जाती है। चलो इसमें देखते हैं, बहस करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। आप सेम चीज़ इसको पाओगे कि इसमें अदात है का, इसमें तशबीह जुमला नंबर 14 में जो एक जुमले के तौर पर कायम किया गया है, एक मिसाल के तौर पर कायम किया गया। इस मिसाल में जुमला मिसाल नंबर 14 में 2 जुमले हैं और दोनों तशबीह के जुमले हैं और दोनों एक ही तरह के हैं। देखो पहले जुमले में बहस करते हैं, इसमें काफ अदात है लेकिन आप वजह शब्द कहीं नहीं पाओगे इसमें। तो अदात के लिहाज से मुरसल हो जाएगी तशबीह और वजह शब्द कहीं नहीं पाओगे तो इस लिहाज से ये मुजमल हो जाएगी, यानी ये तशबीह भी मुरसल मुजमल है। व जुरअतुन का जुरअतिल लैस इज़ा ग़दिबा, और जुरअत है शेर के जुरअत की तरह जब वो गज़बनाक हो जाए। इसमें भी आप देखेंगे कि मुशब्बा भी है और अदात है लेकिन वजह शब्द नहीं है। तो जब वजह शब्द नहीं है इसमें तो ज़ाहिर है इसका मुजमल नाम देंगे, तो इसका नाम भी हो गया मुरसल और मुजमल, यानी मुरसल मुजमल ये भी है। एक देहाती ने अपने भाई की मजम्मत की, एक अपने भाई का बयान किया, मजम्मत नहीं की, अपने भाई का बयान किया है। वसफ़ आराबी अखन लहू, एक देहाती ने अपने भाई का बयान किया तो कहा, काना अखी शजरन ला यखलफु समरुहु व बहरन ला युखाफु कदरुहु। मेरा भाई एक ऐसा दरख्त है कि उसका फल हमेशा टाइम पे आता है, ख़राब नहीं होता है उसका फल, रायगा बर्बाद नहीं जाता है, पीछे नहीं होता है उसका फल, हमेशा अपने वक्त पर आता है। और ऐसा समुंदर है जिसकी गंदगी से खौफ नहीं खाया जाता। यहाँ अपने भाई को एक बार दरख्त कहा है, अच्छा दरख्त कहा है, और एक बार समुंदर से तशबीह दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दरख्त किस चीज़ में कहा है और समुंदर किस चीज़ में कहा है, वजह शब्द क्या है इसमें आप देख नहीं पाएंगे कि इस जुमले में जिक्र नहीं है। और इसी तरह से अगर आप अदात भी ढूंढेंगे तो आपको इस जुमले में अदात भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये तशबीह जिसमें ना अदात हो तो मुअक्कद है, ना वजह शब्द हो तो मुजमल है। और मुअक्कद मुजमल को एक शार्ट नाम दिया गया है, मैंने बताया बलीग बोलते हैं उसको।
जब भी बलीग कहा जाता है किसी तशबीह के बारे में, तशबीह बलीग है, तो उसका मतलब होता है कि मुअक्कद और मुजमल। वक़ाल बुहतरी, बुहतरी ने कहा कुसूरुन कल कवाकिब लामिआतुन, कुसूरुन लामिआतुन कल कवाकिब, चमकते हुए महल सितारों जैसे हैं, चमकते हुए महल सितारों जैसे हैं। यकद न युदिन लिस्सारि ज़लामा, करीब है कि वो चलने वालों के लिए तारीकी को रोशन कर दें। यानी ये महल जो है चमकते हुए सितारों की तरह किस चीज़ में है? रात में चलने वालों के लिए रोशनी देने में, रात में चलने वालों के लिए रोशनी देने में। क्योंकि चमकते हुए जिसमें लाइटें लगी हों वो महल भी राही को रोशनी देते हैं, और सितारे भी राही को रोशनी और राह दिखाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बतलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं वजह शब्द तो जिक्र है और आदात भी जिक्र है, तो ये मुरसल और मुफस्सल है, ये तशबीह मुरसल और मुफस्सल है। ठीक है, और बाकी आप लोग कर लेंगे आगे, ऐसे मश्क कर लोगे। बहुत अहम चीज़ है, इसको जान लो, ये पूरी ज़िंदगी काम आएगी। अगर बाकी जुमले आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।